ناظرین، حضرت شیخ شرف الدین المعروف سید بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور اور مشہور اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا، لیکن آپ نے بو علی قلندر کے نام سے شہرت پائی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سالار فخر الدین کا تعلق ایران کے علاقے کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ 602 ہجری میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا، بلکہ مسلسل رو رو کر والدین کو بے حد پریشان کر دیا۔ قدرت کا قانون تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے اور پھر جب اس کے منہ میں کچھ ڈالتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو بات ہی مختلف تھی۔ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا مسلسل رو رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہوا تھا۔ بچے کو روتے ہوئے پورا دن گزر گیا تو گھر کے تمام افراد پریشانی کے ہاتھوں بری طرح گھبرا گئے۔ ماں نے بچے کو بہلایا، باپ اور بھائی نے بھی اٹھایا، وہ اسے گود میں لیے پھرتے رہے، مگر بچہ تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پورے جسم کا جائزہ لیا گیا کہ کہیں کسی قسم کی چوٹ یا زخم تو نہیں، مگر کوئی خراش تک نظر نہ آئی۔ بچہ مسلسل آنکھیں بند کیے رو رہا تھا۔ اب یہ طے ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بچہ آنکھ کھولے تو تکلیف کا پتہ چلایا جا سکے۔ آنکھیں کھولنے کے لیے کئی جتن کیے گئے، مگر بے سود۔ نہ بچہ دودھ پی رہا تھا، نہ ہی چپ ہو رہا تھا اور نہ ہی آنکھیں کھول رہا تھا۔ اگر بھوک سے ہی رو رہا ہوتا تو دودھ پی کر ہی چپ کر جاتا، مگر یہ ہربا بھی ناکام تھا۔ میاں بیوی اور بڑا بیٹا تینوں پریشانی کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے۔ دائی سے بات کی تو دائی نے ان سے کہا، بچہ آنکھیں کھولے تب ہی کسی تکلیف یا بیماری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب دائی اور بچے کی ماں عاجز آ گئیں تو حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ دوا کارگر نہ ہو وہاں دعا کام کر جاتی ہے۔ یہ سوچ کر شیخ فخر الدین وضو کر کے مصلی پر آ گئے اور سجدے میں گر کر اپنے نومولود فرزند حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اے قادر مطلق، تو کریم ہے، میری عقل اور تدبیر کمزور اور ناقص ہے، میری تمام کوششیں اور تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں، بچے کا رونا ناقابل برداشت ہے، میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو اپنے فضل سے بچے کا رونا بند کر دے اور اس کی آنکھیں کھول دے۔ اے مولا کریم، تو جب تک میری دعا قبول نہیں کرے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ دعا کے بعد حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں طمانینت اور تشفی پیدا ہو گئی، مگر اب انتظار تھا دعا کی قبولیت کا۔ اسی حالت میں سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ پر غنودگی طاری ہو گئی اور حالت خواب میں ان کو بشارت دی گئی، تمہاری مراد 2 دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ خواب دیکھتے ہی غنودگی غائب ہو گئی اور حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو گمان گزرا کہ یہ خواب کہیں شیطانی وسوسہ تو نہیں۔ اسی وجہ سے وہ سجدے میں بدستور پڑے رہے۔ انہیں دوبارہ بتایا گیا کہ ہاتف غیبی کو وسوسہ شیطانی نہ سمجھ، تمہاری مراد 2 دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے اٹھے اور یہ خبر اپنی بیوی کو بھی سنائی، جو روتے ہوئے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ سبھی گھر والے، پڑوسی اور محلے دار حیران تھے کہ بچہ مسلسل رو رہا ہے، مگر نہ تو اس کی آواز بیٹھ رہی ہے اور نہ وہ تھک رہا ہے، بس روئے جا رہا ہے، دودھ سے بے نیاز آنکھیں بند کیے ہوئے ہے اور نہ ہی اس کی توانائی میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ جبکہ حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعا پر کامل یقین تھا، مگر جس بات نے انہیں بے حد پریشان کر رکھا تھا وہ بچے کی مسلسل گریہ وزاری تھی۔ بچے کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا، مشیت ایزدی پر میں بھی قانع ہوں، مگر بچہ رو رو کر نڈال ہو رہا ہے، کسی صادق کو تلاش کرو، شاید اس کی تدبیر سے ہی ہمارے لیے کوئی بہتری پیدا ہو جائے۔ بیوی کی یہ بات سن کر سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک درویش کو دیکھا جس نے چمڑے کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی سائل ہے۔ انہوں نے رواداری میں کہا، بابا کسی اور وقت میں آنا، اس وقت میں جلدی میں ہوں، میں پھر آپ کی حسب استطاعت خدمت کر دوں گا۔ درویش نے سالار فخر الدین کی طرف دیکھا اور کہا، شیخ فخر الدین تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں، تم سے کیا لوں گا؟ تمہیں تمہارا بیٹا مبارک ہو، میں تو اس کے دیدار کو آیا ہوں، جلدی کرو اس کو میرے سامنے لاؤ۔ سالار فخر الدین نے غور سے درویش کو دیکھا تو ان کے قلب و ذہن میں ایک جنبش پیدا ہوئی اور وہ بلا تعمل بول اٹھے، بابا آئیے، شاید میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ یہ کہہ کر حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اندر سے بچے کو لے آئے اور درویش کے سامنے رکھ دیا۔ نومولود بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بدستور رو رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ درویش نے بچے کو اٹھایا اور کہا، قلندر آپ دنیا میں آ گئے ہیں، اس لیے آنکھیں کھول دو اور رونا بند کر دو۔ اس کے بعد درویش نے بچے کے کان میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی،
आयत पढ़ने की देर थी कि बच्चे ने रोना बंद कर दिया और आंखें भी खोल दी। हजरत सालार फखरुद्दीन और उनकी बीवी हैरत से बच्चे और दरवेश को देख रहे थे। सालार फखरुद्दीन ने कहा, दरवेश ये बच्चा दूध भी नहीं पीता। दरवेश बोला, घबराओ मत, आप दूध पिलाओ, ये दूध भी पिएगा और रोएगा भी नहीं। बच्चे के माँ और बाप दोनों मुतमईन हो गए, क्योंकि अब बच्चा दूध भी पी रहा था और रोना भी बंद कर चुका था। दरवेश फिर बोला, ये बच्चा कोई मामूली शख्सियत नहीं, ये कलंदर है। ये एक अजीम रूह है, इसलिए इसकी तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखना। ये बच्चा अजली मादरजात वली है। कुरान करीम की आयत के एहतराम में बच्चा फौरन चुप कर गया है, जबकि पहले 3 दिन से मुसलसल रो रहा था। उसी दरवेश ने फिर बच्चे का नाम शरफुद्दीन रखा, जो आगे चलकर हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए, और वो दरवेश मशहूर बुजुर्ग कलंदर जमाल रहमतुल्लाह अलैह थे। नाज़रीन, हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम पानीपत में मुकम्मल की और बचपन में ही कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह कम सिनी में ही तमाम उलूम ज़ाहिरी से आरास्ता हो गए और मजीद तालीम हासिल करने के लिए पानीपत से दिल्ली तशरीफ ले गए। यहाँ पर मुख्तलिफ असातिज़ा की ज़ेर निगरानी अपनी तालीम मुकम्मल की। इस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अपने दौर के नामवर उलमाए किराम में होने लगा था। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल तक दिल्ली में कुतुब मीनार के पास दर्स व तदरीस का फैज़ जारी रखा। दिल्ली के अकाबिर उलमा आपकी इल्मी फजीलत के मोतरिफ थे। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अरबी जुबान के माहिर असातिज़ा में शुमार होते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को फ़िक़ह, हदीस और तफसीर पर मुकम्मल अबूर हासिल था। फारसी और हिंदी जुबानों पर भी मजबूत गिरफ्त थी। शुरू ही से शायरी की तरफ आपका बहुत गहरा मैलान था। यही वजह है कि ज़ाहिरी उलूम में आप रहमतुल्लाह अलैह की धूम सारे दिल्ली में गूंज रही थी। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दिल्ली की मशहूर मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम में दर्स व तदरीस में मशगूल थे कि अचानक एक दरवेश आया और हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, शरफुद्दीन, जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया गया है वो तो तूने भुला दिया है। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, वो कौन सा ऐसा मकसद है जिसको मैं भुलाए बैठा हूँ और हकीकत अहवाल से बेखबर हूँ। वो दरवेश बोले, शरफुद्दीन, क्या तू अपनी पैदाइश का वाकया भूल गया है? उस वक्त किसी दरवेश ने तेरे मुतालिक क्या पेशन गोई की थी और तुम्हारी दुनिया में आमद का क्या मकसद बयान किया था, और क्या तुमने अभी तक उस मकसद के लिए कोई कोशिश की है या नहीं? हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दरवेश की बेबाकी और पुरतासीर आवाज से इस कदर मुतासिर हुए कि आपके दिल और दिमाग पर एक अजीब किस्म की हलचल पैदा हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इस पेशे दर्स व तदरीस को छोड़कर तसव्वुफ के मैदान कारज़ार में कूद जाएं और बिला खतर दुनिया की इस ख्वाहिश नफ्सी की आग से अपने आप को बाहर निकाल कर खालिक कायनात की मार्फत से न सिर्फ रोशनास हो जाएं बल्कि उसके अंदर अपने आप को गर्क करके हकीकी मानों में वासिले इलल हक हो जाएं। उस दरवेश की जुबान में न जाने क्या तासीर थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने लम्हा भर में फैसला किया और जज्ब व मस्ती के समंदर में गर्क हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह पर इस कदर जज्ब व मस्ती का गलबा तारी हुआ कि आपने उसी वक्त अपना तमाम सरमाया और उलूम व फनून की तमाम किताबें उठाकर दरिया में फेंक दी और खुद जज्ब व मस्ती के आलम में मुसाफरत इख्तियार कर ली और फिर जंगल में जाकर सांस लिया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का जंगल में भी दिल न लगा तो फिर शहर बशहर करिया बकरिया घूमते इराक व खुरासान से होते हुए कोनिया रूम पहुंच गए। वहां पर आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हजरत जलालुद्दीन रूमी और उनके मुर्शिद पाक हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी सोबत इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में आपने कलंदराना वज़ाक़त इख्तियार कर ली और बाज़ रिवायात के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहां से जुब्बा व दस्तार भी हासिल किया। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक तसनीफ में हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहने का इतराफ़ भी किया है। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक अरसे तक बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर उनसे इक्तसाब फैज़ हासिल करते रहे। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैत की सादत हासिल कर ली थी, लेकिन बाज़ रिवायात के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह की बैत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से भी मंसूब है। एक मरतबा शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि किसी ऐसे शख्स का मुरीद होना चाहिए जो आसमान में तसर्रुफ रखता हो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह पहले आसमान पर तशरीफ ले गए। वहां आपने देखा कि हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर नमाज में मशगूल हैं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए, वहां भी यही देखा और फिर तीसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। वहां पर भी हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को मौजूद पाया।
इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह 7 आसमानों पर तशरीफ ले गए और हर जगह महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को मुसल्ले पर नमाज में मशगूल पाया। इसके बाद आपने जुल्मात के 70 हिजाबात तय किए। वहाँ भी हर जगह हजरत महबूब इलाही को सफेद मुसल्ले पर इस्तादा देखा। दूसरे रोज शेख शरफुद्दीन बुअली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी 70,000 हिजाबात में से 50,000 हिजाबात तय किए। वहाँ भी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बैत की दरखास्त की। हुजूर महबूब इलाही ने फरमाया, बू अली, आपको मजीद बैत की क्या जरूरत है? हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, 24,000 हिजाबात अभी बाकी हैं, उनसे बगैर वसीले पीर के गुजरना दुश्वार है। हुजूर महबूब इलाही ने फरमाया, कल असर के वक्त मैं दरिया जमुना पर मौजूद हूँगा, तुम वहीं आकर मुरीद हो जाना। फिर जब असर का वक्त हुआ तो हजरत दरिया के किनारे तशरीफ लाए और सर मुबारक से कुला उतार कर दरिया में डाल दी तो वो कुला गायब हो गई। चंद याराने तरीकत जो साथ हाजिर थे उन्होंने हर चंद उसको ढूंढा मगर कहीं मौजूद न पाया। फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पानी के अंदर हाथ डालकर शजरा पढ़ा और शेख शरफुद्दीन बुअली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया। सैयद शरफुद्दीन अल मारूफ हजरत बुअली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को सिलसिला कलंदरिया में बुलंद मकाम हासिल है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने नाम शरफुद्दीन की बजाय अपने लक़ब बू अली की वजह से मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब बू अली की वजह तस्मिया कुतुब सैयर में मुख्तलिफ बयान की गई है। इस हवाले से 2 मशहूर वाक़यात पेश किए जाते हैं। कुतुब सैयर में मनकूल है कि हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 12 साल तक दरिया में खड़े रहे, हत्ता कि आप रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक का गोश्त मछलियां खा गईं और आपको इसकी मुतलकन खबर न हुई। इस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह को निदाए गैबी होती रही, ऐ शरफुद्दीन मांग क्या मांगता है? आप रहमतुल्लाह अलैह एक ही जवाब देते रहे, या अल्लाह मुझे अली बना दे। गैब से जवाब आता नहीं, तुझे कैसे अली बनाया जा सकता है, क्योंकि अली तो सिर्फ एक ही है। कुतुब सैयर में दर्ज है कि आप रहमतुल्लाह अलैह इस हालत में 12 साल तक दरिया में खड़े रहे। आखिर निदाए गैबी हुई, ऐ शरफुद्दीन अपनी जिद से बाज आ जा और कुछ और मांग ले। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं भला कुछ और क्यों मांगूं, मुझे तू बस अली बना दे। निदाए गैबी हुई, अच्छा तो यूं करते हैं कि तुझे अली की बू अता कर देते हैं। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बू अता कर दी गई। इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को बू अली कलंदर कहा जाता है। रिवायात से मालूम होता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के पास से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खुशबू आया करती थी। इसी खुशबू की वजह से धीरे धीरे सब लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को बू अली कहना शुरू कर दिया, जो कि आप रहमतुल्लाह अलैह के असल नाम से ज्यादा मशहूर हुआ। एक और रिवायत ये बयान की जाती है कि हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 12 साल तक दरिया में इबादत और रियाजत में खड़े रहे। इसी दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक का गोश्त मछलियां खा गईं, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह वहीं बदस्तूर खड़े रहे। 12 साल के बाद निदाए गैबी हुई, हमने तेरी इबादत और इताअत कबूल कर ली, तू जो मांगता है अब मांग ले। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की, या इलाही मैं तुझसे तुझ ही को मांगता हूँ, मैं तो यही खड़ा खड़ा जान दे दूंगा और तेरी मोहब्बत में दम तोड़ दूंगा। गैब से निदा आई, पानी से बाहर निकला, हमें तुझसे बहुत काम लेने हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मैं खुद तो नहीं निकलूंगा। उसी वक्त एक बुजुर्ग ने गोद में उठाकर किनारे पर खड़ा कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने झुंझलाकर कहा, ऐ शख्स तू कौन है जिसने मेरी 12 साल की मेहनत जाया कर दी? मैं मंजिल मकसूद पर पहुंचने वाला ही था। उसने कहा, ऐ शरफुद्दीन मुझे देख, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फौरन कदमों में गिर पड़े और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको नेमत बातनी से माला माल कर दिया। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह पर तमाम दीनी और दुनियावी उलूम रोशन हो गए और आप रहमतुल्लाह अलैह दुनिया और माफिया से गाफिल और मस्त व अलस्त हो गए। उसी रोज से आप रहमतुल्लाह अलैह को बू अली कहा जाने लगा। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद औलाद से महरूम था। उस मुरीद के दिल में कई मरतबा ख्याल आया कि आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ये मसला बयान करे, मगर उसे हिम्मत न होती। एक रोज उस मुरीद ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैं और मेरी बीवी आप रहमतुल्लाह अलैह की दावत करना चाहते हैं, क्या आप रहमतुल्लाह अलैह हमारे घर आना पसंद फरमाएंगे? नीज मेरी बीवी ये चाहती है कि आप रहमतुल्लाह अलैह जब हमारे घर तशरीफ लाएं तो वो खुद आपके हाथ धुलवाए। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद की तरफ देखा और दावत कबूल करते हुए फरमाया, देखो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, दावत भी खाऊंगा और तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। चुनांचे हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुकर्रर दिन पर उस मुरीद के घर पहुंचे तो मुरीद ने अर्ज किया, मेरी और मेरी बीवी की ये ख्वाहिश है कि आप रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए औलाद की दुआ फरमाएं। इस दौरान उस मुरीद की बीवी खाना तैयार करती रही और जब वो खाना पका चुकी तो उसने गुस्ल किया और पाक साफ लिबास से बितन किया।
अपने हाथों में तश्त व आफ्ताबा पकड़े हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपके हाथ धुलवाने के लिए हाजिर हुई। उस औरत का हुस्न क़यामत खेज था। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस औरत की तरफ देखा तो आप पर जज्ब व मस्ती का आलम तारी हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह को ना खाने का होश रहा ना दुआ का ख्याल रहा, बस एक ही फिक्रा आप रहमतुल्लाह अलैह की जुबान पर जारी था, बेऐब जात अल्लाह की, अल्लाह बस बाकी हवस। ये हालत जज्ब व मस्ती इस कदर गहरी तारी हुई कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हर चीज हत्ता कि नमाज भी तर्क कर दी और अपनी हालत में ही मस्त और बेगाना हो गए। एक मर्तबा हजरत शेख जलालुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए जंगल में तशरीफ ले गए। जब वो हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह के नजदीक पहुंचे तो उन्हें एक शेर नजर आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शेर को देखकर फरमाया, ये आशिकाने इलाही का मकाम है, तेरा इधर कुछ काम नहीं। शेर ने यह सुना तो हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह की तरफ चल पड़ा। शेख जलालुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह भी शेर के पीछे पीछे हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह की जानिब चल पड़े। हजरत शेख जलालुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब क़यामगाह के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि 4 शेर मजीद हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह के अंदर मौजूद हैं। ये हैबतनाक मंजर देखकर हजरत शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कदरे दहशत मालूम हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह घबराकर पीछे की जानिब हटे। इसी दौरान हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। उन्होंने ये मंजर देखा तो शेख जलालुद्दीन पानीपती को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम हमारे राजदारों में से हो, आओ हम तुम्हें शेरों का तमाशा दिखाएं। शेख जलालुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने शेरों की जानिब दोबारा देखा तो वो आपस में खेल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद वो चारों शेर हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लिपट गए और उनके कदमों में खेलने लग गए। बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, जलालुद्दीन ये अल्लाह के आशिकों का मकाम है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को बेटे की बहुत आरज़ू थी, लेकिन उसकी यह ख्वाहिश पूरी न होती और जब भी उसके घर कोई औलाद होती तो वो लड़की होती। नरीना औलाद की तमन्ना में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने कसम खाई कि अब जब भी उसके यहाँ लड़की पैदा होगी तो वो उसे जान से मार देगा। इत्तेफाकन उसके घर फिर लड़की की पैदाइश हो गई। सुल्तान की बीवी ने ममता से मजबूर होकर उस लड़की को जंगल में रखवा दिया और बादशाह से बहाना कर दिया। जिस दिन बच्ची को जंगल में रखवाया गया उस दिन एक धोबी जंगल से गुजरा। उसने जब एक नौमौलूद बच्ची देखी तो उसको अपने घर ले गया। उस धोबी ने उस बच्ची को पाल पोस कर जवान किया और जब उस लड़की की उम्र 12 साल हो गई तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की नजर दौरान शिकार उस लड़की पर पड़ गई। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उस लड़की पर आशिक हो गया और उसने उस लड़की के साथ निकाह कर लिया। निकाह के बाद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने जब उस लड़की से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही तो उस लड़की को खून जारी हो गया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बाज रहा, लेकिन जब भी वो उस लड़की के साथ हम बिस्तरी का इरादा करता तो उस लड़की को खून जारी हो जाता। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अपने दरबार में मौजूद हुक्मा से राब्ता किया, लेकिन उसका मसला हल न हो सका। जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हर तरफ से मायूस हो गया तो वो हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा माजरा बयान कर दिया। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की बात सुनने के बाद मुराकबा किया तो सारी सूरत हाल उन पर मुनकशफ हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को मुखातिब करते हुए फरमाया, गयासुद्दीन जिस लड़की से तू हम बिस्तरी करना चाहता है वो तेरी बीवी नहीं बल्कि तेरी बेटी है और उसको खून सिर्फ इस वजह से आता है कि अल्लाह ताला तुझे इस कबीरा गुनाह में मुब्तला नहीं करना चाहता। तू इस बात की तस्दीक अपनी बीवी से भी कर सकता है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने वापस महल में जाकर जब अपनी बीवी से दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि जब सुल्तान ने लड़की को मारने का इरादा किया था तो उसने इस डर से लड़की को जंगल में फेंकवा दिया था। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक खौफ इलाही से कांप उठा और उसने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़ गिराकर माफी मांग ली। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद अक्सर इस्तिगराक में गुम रहता था और इसी कैफियत में बेखुद होकर पानीपत के बाजारों में फिरा करता था। एक दिन वो मुरीद इसी कैफियत में बाजार से गुजर रहा था कि हाकिम पानीपत की सवारी आ गई। हर तरफ शोर बर्पा हो गया, लेकिन वो मुरीद अपनी बेखुदी में गुम चलता गया। उसने शाही सवार के ऐलान की कोई परवाह न की। जब हाकिम पानीपत के चौबदारों ने उसे रास्ते से हट जाने को कहा तो तब भी वो रास्ते से न हटा और अपनी कैफियत में मगन रहा। हाकिम पानीपत के चौबदारों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस मुरीद को खूब मारा और मार कर बाजार के एक कोने में फेंक दिया। हाकिम पानीपत की सवारी गुजर गई। वो मुरीद कुछ देर बाद रोता हुआ बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम माजा उनके गोश गुजार कर दिया। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने मुरीद के जख्म देखे तो आप जलाल में आ गए और चाहते थे कि हुकूमत दिल्ली का तख्ता उलट दें।
اور سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیں۔ اسی خیال کے تحت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان علاؤ الدین خلجی کو خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: علاؤ الدین، میں نے تمہیں بھلائی، نیکی اور بندگان خدا کی فلاح کی نصیحت کی تھی، مگر آج تیرے ایک حاکم کے کارندوں نے میرے مرید کو مار مار کر بے حال کر دیا ہے۔ میرے مرید کی آہوں نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے حاکم مذکور کو سزا دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرو، ورنہ عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم سزا دینے میں ناکام رہے تو حکومت کرنے کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ کر سناٹے میں آ گیا۔ فوراً مذکورہ حاکم پانی پت کو پابہ زنجیر پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب حاکم پانی پت سلطان علاؤ الدین خلجی کے روبرو پیش ہوا تو سلطان علاؤ الدین خلجی نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو مارنے کی تفصیل پوچھی تو وہ بولا: بلا شبہ میرے چوبداروں نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو مارا ہے، مگر اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ محافظ دستے کے سپاہیوں نے میری خوشنودی کی خاطر یہ کام کیا ہے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے کہا: اگرچہ تو نے ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تیرے سپاہی جب مارنے والی ایسی نامعقول حرکت کر رہے تھے اور تو دیکھ رہا تھا تو اس وقت تو نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ تمہاری خاموشی اور تماشا بینی کا صریحاً مطلب یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اپنے چوبداروں کو ایسا کرنے دیا اور اس میں تمہاری رضامندی باقاعدہ شامل تھی۔ حاکم پانی پت سلطان علاؤ الدین خلجی کے ارادوں کو بھانپ کر زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا: میں بے گناہ ہوں۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے کہا: تو میری نظر میں اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی نظر میں گناہ گار ہے، اور ان کا گناہ گار خدا اور اس کے رسول کا بھی گناہ گار ہے، اور ایسے گناہ گار کو معاف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حاکم پانی پت منتوں پر اتر آیا۔ بالآخر سلطان علاؤ الدین خلجی نے حکم صادر فرمایا: حاکم پانی پت کی اتنی ہی پٹائی کی جائے جتنی پٹائی اس نے اس مرید کی کروائی ہے۔ اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے اور اس کے خاندان کے ہر فرد کو آئندہ ہمیشہ کے لیے شاہی ملازمت کا نااہل قرار دیا جائے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے اس فیصلے پر فی الفور عمل درآمد کیا گیا اور حاکم پانی پت کو مکمل سزا دے دی گئی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے دور میں پانی پت اور اس کے گرد و نواح کی راجپوت ریاستوں کو جب تہس نہس کیا گیا تو راجپوت در بدر ہو گئے۔ اس دوران حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ اس دوران ہزاروں راجپوت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جن راجپوتوں نے دین اسلام قبول نہ کیا وہ اس علاقے سے چلے گئے۔ جانے والے راجپوتوں میں ایک عورت بھی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ وہ عورت چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں میں چلی گئی۔ اس عورت کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے اس لڑکے کا نام امر سنگھ رکھا۔ جب امر سنگھ نوجوان ہوا تو اس کی ماں نے اس کو ساری رویداد سنائی اور کہا کہ ہم کسی دور میں پانی پت اور کرنال کے حکمران تھے اور اس طرح مسلمانوں کی وہاں حکومت آئی اور ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا۔ امر سنگھ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے اپنے آباء و اجداد کا انتقام ضرور لے گا اور اپنی کھوئی ہوئی جاگیر واپس ضرور حاصل کرے گا۔ ایک مرتبہ امر سنگھ گھر سے نکلا اور پانی پت پہنچ گیا۔ پانی پت پہنچا تو اسے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر پکارا۔ امر سنگھ روک کر اس ناواقف شخص کی طرف دیکھنے لگا جسے اس نے نام لے کر پکارا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حیران و پریشان دیکھ کر کہا: امر سنگھ، ہم تمہارے لیے اجنبی ضرور ہیں لیکن تم ہمارے لیے اجنبی نہیں ہو۔ فقیروں کے لیے کوئی بھی اجنبی نہیں ہوتا، اور ہم تیرے علاوہ تیرے اسلاف کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے اسلاف پانی پت کے عمراء میں شمار ہوتے تھے اور قرب و جوار کے بہت سے علاقوں پر ان کا قبضہ تھا۔ پھر خلجیوں کے ساتھ جنگ میں تیرے خاندان کے سب افراد مارے گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی۔ تو اسی عورت کا بیٹا ہے اور اپنی آبائی جاگیر کے حصول کے لیے پانی پت آ گیا ہے۔ کیا یہ تمام باتیں جو میں نے بتائیں وہ غلط ہیں؟ امر سنگھ نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ سب سنا تو فوراً قدموں میں گر پڑا۔ کہنے لگا: نہیں بابا جی، آپ نے جو کچھ بتایا وہ درست ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امر سنگھ سے پوچھا: کیا تو جانتا ہے کہ ہم نے تجھے آواز کیوں دی؟ امر سنگھ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مجھے تجھ سے سچائی کی خوشبو آتی ہے، تو ہمارے حلقے میں آ کر مسلمان ہو جا، تجھے اسی دین سے پناہ ملے گی۔ امر سنگھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صاف گوئی سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے عرض کرتے ہوئے کہا: مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا مگر میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ امر سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے کوئی عذر نہیں مگر اس سلسلے میں اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اجازت دیتے ہوئے فرمایا: جا اور اپنی ماں سے اجازت لیا۔
अमर सिंह जिस काम से पानीपत आया था उसको भुलाता हुआ वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसका घर पानीपत से कई मील दूर था। जब वो एक लंबे सफर के बाद घर पहुंचा तो उसने देखा कि हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसकी मां के पहलू में मौजूद हैं। वो हैरान हो गया कि हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उससे पहले कैसे पहुंच गए। इस दौरान बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अमर सिंह की मां को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ खातून, हमने तेरे बेटे को अपना बेटा बना लिया है और अब ये हमारे हल्के में रहेगा। तुम इस बारे में क्या कहती हो? अमर सिंह की मां हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से पहले ही मरऊब हो चुकी थी। उसने अर्ज करते हुए कहा, मियाँ जी, अगर ये आपके हल्के में चला गया तो बिरादरी वाले हमें निकाल देंगे और फिर इसको कौन पूछेगा और इसका रिश्ता कहाँ मुमकिन हो सकेगा। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की परेशानी पर मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम्हारी बिरादरी पहले ही मुसलमान हो चुकी है और जो लोग बाकी बचे हैं उनकी फिक्र न करो, वो भी अनकरीब मुसलमान हो जाएंगे। तुम अपना बेटा हमारे हल्के में आने दो, बाकी बिरादरी वाले भी खुद ब खुद हमारे हल्के में आ जाएंगे। अमर सिंह की मां ने जब यकीन दहानी करवा दी तो हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वहां से रुखसत हो गए। अमर सिंह भी मां की इजाजत से रुखसत हुआ और पानीपत पहुंचा। पानीपत पहुंचने के बाद उसने देखा कि हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हालत नमाज में थे। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग हुए तो अमर सिंह ने आपके कदमों में सर रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कलमा पढ़ाया और उसका नाम अमरुल्लाह खान रख दिया। फिर हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अमरुल्लाह खान को उसकी आबाई जायदाद वापस कर दी। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक जल्द ही उसके खानदान के बाकी अफराद भी मुसलमान हो गए। अमरुल्लाह खान की शादी भी उनके खानदान में हो गई और अमरुल्लाह खान की औलाद आज भी पानीपत में आबाद है। नाज़रीन, हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर अक्सर औकात कैफियत जज्ब सकर तारी रहती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह कई दिन इस हालत में मुस्तगरक रहते थे और अपने जाहिर के बारे में आप रहमतुल्लाह अलैह को कुछ होश बाकी न रहता था। एक मरतबा इसी कैफियत जज्ब सकर में आप रहमतुल्लाह अलैह इस कदर मगलूब हुए कि कई दिनों तक जाहिरी होश न रहा। इस हालत में आप रहमतुल्लाह अलैह की रीश मुबारक बहुत बढ़ गई। पानीपत के मुफ्ती हजरात ने आप पर बहुत जोर दिया कि अपनी रीश मुबारक को कटवाएं और उसे शरई हालत में ले आएं। क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह पर कैफियत सकर तारी थी, इसलिए आपने उनकी बातों पर तवज्जो न दी और अपनी हालत में मस्त रहे। एक दिन तंग आकर पानीपत के मशहूर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन ने आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कैंची मंगवाई और आप रहमतुल्लाह अलैह की रीश मुबारक को पकड़कर कैंची से काटकर शरई हालत में कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह इस दौरान खामोश बैठे रहे। जब मुफ्ती ज़ियाउद्दीन वापस चले गए तो आपने फरमाया, ऐ रीश, तू कितनी मुबारक है जो दोबारा शरई हालत में आ गई। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर कई मरतबा ऐसी कैफियत तारी होती कि उस दौरान चिड़िया का चहकना भी नागवार महसूस होता। ऐसे मौका पर आप रहमतुल्लाह अलैह कैफियत जलाल में होते और जब किसी चीज की तरफ नजर करते तो वो चीज जलकर राख बन जाती। कुतुब सिजर में मनकूल है कि एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह इसी कैफियत में बैठे थे कि एक बारात का नजदीक से गुजर हुआ। बारात ढोल की ताप में शोर मचाती हुई नजदीक से गुजरी तो आप रहमतुल्लाह अलैह को ये नागवार गुजरा। आपने जलाली कैफियत में नजर उठाकर बारात की तरफ देखा तो बारात गायब हो गई। उधर जब बारात वक्त मुकर्रर पर दुल्हन वालों के घर न पहुंची तो उन्होंने परेशानी के आलम में बारात को तलाश करना शुरू कर दिया। जब दुल्हन वाले बारात का मालूम करने उनके घर गए तो मोहल्ले वालों से पता चला कि बारात यहाँ से काफी देर हुई जा चुकी है। वो लोग मजीद परेशान हो गए और बारात को पूरे शहर में तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन बारात का कुछ पता न चला। बिलाखिर वो लोग परेशानी के आलम में एक बुजुर्ग के पास तशरीफ ले गए और उनसे सारा माजरा बयान किया। उस बुजुर्ग ने जब सारी बात सुनी तो वो परेशान हो गए और बोले, गजब हो गया, तुम फौरन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ। वो लोग हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त एक तालाब के किनारे बैठे उसकी लहरों को देख रहे थे। लोगों ने आगे बढ़कर दस्तबोसी की और फरमाया, हुजूर, हमारी बारात गायब हो गई, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह हमारे हाल पर तवज्जो फरमाएं। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह की नजर दो और इस फकीर की न्याज पकवाओ, बारात वापस आ जाएगी। चुनांचे उन लोगों ने न्याज पकवाकर फुकरा और मसाकीन में तकसीम की और हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, सामने देखो। उन लोगों ने नजरें उठाकर सामने देखा तो बारात नजर आने लग गई और ढोल की ताप फिजा में बुलंद होना शुरू हो गई। बारात वाले ऐसे खुश थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को लोग कत्ताल के लक़ब से बुलाने लग गए। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने तवील उम्र पाई। आपने इस दौरान 3 तुगलक बादशाहों का दौर देखा,
जिनमें गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक शामिल हैं। एक मर्तबा सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक अपने दौरे हुकूमत में अपने बेटे मोहम्मद शाह तुगलक और भतीजे फिरोज शाह तुगलक के हमराह आपकी खिदमत में हाजिर हुए। खाने का वक्त हुआ तो इन तीनों हजरात ने एक ही प्याले में खाना शुरू कर दिया। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा तो फरमाया, इस वक्त तीन बादशाह एक ही प्याले में खाना खा रहे हैं। हाजरीन महफिल आप रहमतुल्लाह अलैह की इस बात का मफहूम ना समझ पाए और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चुनाचे फिर तारीख ने यह बात साबित कर दी कि हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुआ। सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक तख्त नशीन था, उसके मरने के बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह तुगलक तख्त नशीन हुआ और फिर मोहम्मद शाह तुगलक के मरने के बाद उसका चचाजाद भाई फिरोज शाह तुगलक तख्त नशीन हुआ। एक मर्तबा सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्त बस्ता खड़ा हो गया। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद शाह तुगलक से दरियाफ्त किया, मोहम्मद शाह तू यहाँ कितने दिन खड़ा रहेगा? हजरत बू अली कलंदर की इस सवाल से मुराद ये थी कि वो इस तरह कितनी देर तक हाजिर खिदमत रहेगा। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक ने अर्ज की, हुजूर 3 दिन रहूंगा। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक का जवाब सुनकर बोले, तू 3 दिन नहीं बल्कि 4 साल रहेगा। आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक फौरन समझ गया कि आपने उसकी उम्र की तरफ इशारा किया है। चुनाचे इस वाक़े के ठीक 4 साल बाद मोहम्मद शाह तुगलक का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, जब हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह पानीपत तशरीफ लाए तो आपने एक दूध से भरा हुआ प्याला अपने एक खादिम के हाथ हजरत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजा। हजरत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह खादिम को देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि दूध के भरे प्याले की वजह यह थी कि ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा दिया, ये शहर मेरी विलायत में पुर है और यहाँ किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है। हजरत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सारी बात समझ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने गुलाब के चंद फूल और उनकी पत्तियां मौजूद थीं। आपने दूध भरे प्याले में एक गुलाब का फूल डाल दिया और प्याला उसी खादिम के हाथों वापस भेज दिया। ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह खादिम के हाथ में प्याला और उसमें गुलाब के एक फूल को देखकर मुस्कुरा दिए। हाजरीन मजलिस बेहद हैरान हुए और ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह से इस मामले की वजाहत चाही, जिस पर उन्होंने फरमाया, हमारी हजरत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास प्याला भेजने की वजह यह थी कि ये मिल्क मेरे शेख ने मुझे अता किया है जो मुझसे पुर हो गया है। हजरत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें गुलाब डालकर प्याला वापस भेज दिया, जिससे उनकी मुराद यह है कि वो मेरे मिल्क और विलायत से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और यहाँ इसी तरह रहेंगे जिस तरह दूध में गुलाब का फूल है। जब यही बात शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से पूछी गई तो आपने भी यही जवाब दिया। चुनाचे दोनों साहिबान खुदा के दरमियान आखिर वक्त तक इखलास और मोहब्बत कायम रहा। एक दिन हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सरे राह बैठे थे कि हजरत शेख जलालुद्दीन महमूद पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होकर इधर से गुजरे। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उनको देखकर फरमाया, कैसा घोड़ा है और कैसा सवार है। हजरत शेख जलालुद्दीन महमूद पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह आपकी आवाज सुनते ही बेखुद हो गए, घोड़े से उतर गए और अपना गिरबान चाक करके जंगलों की तरफ निकल गए। आप रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक जंगलों में फिरते रहे और मुख्तलिफ दरवेशों और फकीरों की सोबत इख्तियार की। जब वतन वापस तशरीफ लाए तो हजरत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से बैत की दरख्वास्त की, लेकिन हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने शेख जलालुद्दीन महमूद पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह को हजरत शेख शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा। उन्होंने सलूक की दीगर मनाजिल शेख शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास रहकर हासिल की। बाद में वो हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत हासिल थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हजरत बू अली कलंदर का मुरीद था। एक मरतबा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अज़राह अकीदत को तहफ़ हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजने का इरादा किया। सुल्तान ये भी जानता था कि हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तोहफे तहफ़ कबूल नहीं फरमाते। सुल्तान ने अपने वज़रा से मशवरा किया तो उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को मशवरा दिया कि अगर हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तहफ़ भिजवाने हैं तो इस काम के लिए हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह से बेहतर कोई शख्स नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अपने वज़रा का ये मशवरा पसंद आ गया। चुनांचे सुल्तान ने हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में तलब फरमाया। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह जब दरबार में हाजिर हुए तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उन्हें लेकर अपनी खिलवत गाह में आ गया और सारी बात उनके गोश गुजार कर दी कि वो हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को कुछ तहफ़ भेजना चाहता है।
اس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زحمت دی ہے کہ آپ یہ تحائف لے کر پانی پت تشریف لے جائیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان علاء الدین خلجی کی بات سن کر اس سے فرمایا، میں اپنے مرشد پاک سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ سلطان علاء الدین خلجی نے کہا کہ آپ اپنے مرشد پاک سے اجازت حاصل کر لیں۔ امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان علاء الدین خلجی کا مدعا بیان کیا۔ خواجہ صاحب نے پہلے تو تامل کا اظہار کیا، پھر اجازت دیتے ہوئے فرمایا، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بات بتائیں اس کو دل و جان سے مان لینا اور ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرنا۔ مرشد پاک کی اجازت ملتے ہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ شاہی تحائف لے کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے پانی پت پہنچے۔ پانی پت پہنچنے کے بعد حضرت بو علی قلندر سے ملاقات کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ جس وقت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ قلندری میں پہنچے تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے گھر سے باہر تشریف لا کر امیر خسرو کا استقبال کیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے خسرو تم ہیرے ہو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا تو اپنی ٹوپی سر سے اتار دی اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اپنا سر مبارک رکھ دیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو کی تواضع کی اور فرمایا، اپنا تازہ کلام مجھے سنائیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو کی غزل سنی تو آپ نے ان کو بہت سی دعائیں دیں اور انہیں پھر اپنا کلام سنایا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا تو بے اختیار رونا شروع ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کچھ سمجھ بھی آئی یا نہیں؟ امیر خسرو نے جواب دیا، حضرت اسی بات کا تو رونا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے خود میں آپ کا کلام سمجھنے کی صلاحیت نہیں پائی۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر خسرو کی بات سے متاثر ہوئے اور ان کو نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد امیر خسرو نے بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے تحائف پیش کیے تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرما لیے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو پہلے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے تامل کا اظہار کیا، لیکن جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے سلطان علاء الدین خلجی نے آپ کی خدمت میں بھیجی ہیں، تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تحائف کو قبول فرما لیا اور فرمایا، اگر سلطان المشائخ کا وسیلہ نہ ہوتا تو میں ہرگز ان تحائف کو قبول نہ کرتا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے تحائف قبول کرنے پر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان علاء الدین خلجی کے نام ایک پروانہ لکھا اور اسے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پروانہ جا کر سلطان علاء الدین خلجی کو دیا اور جب وہ پروانہ دربار میں پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا، علاء الدین خلجی اچھی طرح جان لے کہ وہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ جب یہ تحریر پڑھی گئی تو سلطان علاء الدین خلجی کے کچھ نادان وہ ذرا غصے میں آ گئے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے ان سے کہا، اے بے وقوفو، حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے دہلی کی بادشاہی ہمارے لیے برقرار رکھی ہے۔ ناظرین، کتب سیر میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت سر پر دہی کا برتن رکھے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے دریافت کیا، کیا بیچ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ وہ دہی بیچ رہی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا، کیا وہ دہی بیچے گی؟ اس عورت نے کہا کہ وہ دہی بیچنے کے لیے نکلی ہے، لیکن دہی قیمتی ہے اس لیے تم خرید نہیں سکو گے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے دہی کی قیمت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت سونے کا ایک سکہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد اپنے گھٹنوں کے نیچے سے ایک سونے کا سکہ نکالا اور اس عورت کو دیتے ہوئے کہا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے، یہ دہی اور سکہ تمہارا ہو۔ اس عورت نے سکے کو پکڑ لیا اور حیران ہو کر آپ کو دیکھنے لگ گئی۔ اس نے گھر جا کر اپنے خاوند کو ساری رویداد سنائی۔ اس کا خاوند بھی یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس فقیر نے سونے کا سکہ بھی دے دیا اور دہی بھی نہ لی۔ کچھ روز بعد وہ عورت دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلا کر سونے کا سکہ دے دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے معمول بنا لیا کہ کچھ دنوں کے بعد آتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے سونے کا سکہ دے دیتے۔ ایک دن اس عورت کے شوہر نے کہا کہ تم اس درویش سے سونے کے سکے کی بجائے اپنے لیے اولاد نرینہ طلب کرو۔
चुनाचे अगले दिन जब वो औरत आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने हस्ब मामूल उसको सिक्का दे दिया। उस औरत ने कहा, हुजूर आज मैं सिक्का लेने नहीं आई बल्कि बेटे की तमन्ना लेकर आई हूँ। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा, तुम अपने मोहल्ले में जाकर ऐलान कर दो कि जिसके घर औलाद न होती हो वो यहाँ आ जाए। अगले दिन वो औरत मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह के पास उस वक्त एक पान पड़ा हुआ था जिसका एक एक टुकड़ा आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन औरतों को खिला दिया। उन औरतों में से एक औरत के अलावा बाकी सब ने पान खा लिया। जब मुकर्रर मुद्दत गुजरी तो सब औरतों को अल्लाह ताला ने औलाद नरीना अता फरमाई। वो औरत जिसने पान का टुकड़ा नहीं खाया था वो औरत औलाद से महरूम रही। जिन औरतों को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा था वो औरतें अजराह अकीदत दही का एक एक बर्तन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुईं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके नजराने को कबूल फरमा लिया। उन औरतों में वो औरत भी शामिल थी जिसने पान का वो टुकड़ा नहीं खाया था जिसकी वजह से वो औलाद से महरूम थी। वो औरत गमगीन सूरत बनाए उन तमाम औरतों में खड़ी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि उसने वो पान का टुकड़ा नहीं खाया था, लिहाजा उसके घर औलाद नहीं हुई और वो अभी तक औलाद से महरूम है। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से पूछा, वो पान का टुकड़ा कहाँ है जो हमने तुम्हें दिया था? उस औरत ने बताया कि उसने वो पान का टुकड़ा एक पत्थर के नीचे दबा दिया था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुनकर फरमाया, गमगीन मत हो और उस पत्थर को उठाकर देखो। उस औरत ने जब जाकर वो पत्थर उठाया तो उस पत्थर के नीचे एक नौज़ायदा बच्चा खेल रहा था। वो औरत आप रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत देखकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में बच्चा दे दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत और बच्चे के हक में दुआए खैर फरमाई और वो बच्चा वापस उस औरत को दे दिया। हजरत अबू अली शाह कलंदर और हजरत लाल शाहबाज कलंदर दोनों का शुमार अजीमुल मर्तबत औलिया अल्लाह में होता है। ये दोनों बुजुर्ग अपने दौर के नामवर औलिया अल्लाह और कलंदर हैं। इन दोनों बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में कुफर के अंधेरों में इस्लाम की शमा को रोशन किया। इन दोनों हजरात की इबादत, रियाजत और लगन की बदौलत हजारों अफराद दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और नाबके रोजगार लोगों में शामिल हो गए। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का अहवाल कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि जब हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सयाहत के दौरान अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर हाजिर हुए और फयूज़ व बरक़ात से माला माल हुए तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको रूहानी इशारा किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल अक्ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चिल्ला कशी करें। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिर हुए और जहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से रूहानी इशारा पाते ही पानीपत में हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। फिर एक अरसे तक उनकी खिदमत में हाजिर रहकर फयूज़ रूहानी से माला माल होते रहे। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर कलंदरी रुमूज से आगाही हासिल की और सलूक की दीगर मनाजिल तय की। एक दिन हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उस्मान तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुमसे खसूसी लगाव है, लेकिन इस वक्त सरजमीन सिंध पर तुम जैसे कलंदर की जरूरत है। वहाँ के लोग इस वक्त किसी रहबर के इंतजार में हैं जो उनको रूहानी फयूज़ व बरक़ात से मालामाल करे। चुनांचे हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे पर सिंध तशरीफ लाए और सेवन शरीफ में क़याम पजीर हो गए। एक मरतबा हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम में दर्स व तदरीस में मशगूल थे। इसी दौरान एक दरवेश ने आपसे कहा, ऐ शरफुद्दीन, जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया गया था वो तो तूने भुला ही दिया। दरवेश के कहने में इतनी तासीर थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन दर्स व तदरीस छोड़ छाड़ कर जज्ब व मस्ती की हालत तारी कर ली। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुसाफरत इख्तियार कर ली और हिंद से बाहर चले गए। इन सफरों के दौरान ही आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन रूमी और हजरत शेख शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से हुई, जिन्होंने हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को जुब्बा व दस्तार से सरफराज फरमाया। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने कलंदराना वज़ाकता इख्तियार कर ली। नजरीन, दुनिया में 2.5 कलंदर गुजरे हैं जिनमें हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत राबिया बसरी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हैं। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मादरजाद वली थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को जो मकाम व मर्तबा नसीब हुआ वो काबिल रश्क भी है और काबिल तकलीद भी, और इसमें खुदा की इनायत व नवाजिश के सामान भी नजर आते हैं। कहा जाता है कि जिस जमाने में हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह किताबों को खैर बात कहकर जंगलों और वीरानों में घूम रहे थे, वो जमाना आप रहमतुल्लाह अलैह की इंतहाई मदहोशी का जमाना था।
मगर इतने गहरे जज्ब और इतने अजीम शुक्र के बावजूद अल्लाह ताला का नाम सुनकर कांप जाते थे, और जब नमाज का वक्त होता तो इस तरह होश में आ जाते जिसकी मिसाल कलम के जिक्र से बाहर है। आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज बाकायदगी से पढ़ते और दूसरों को भी पाबंद फरमाते। आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा देखने वालों को इबादत और रियाजत में मशगूल नजर आते थे। उम्र के आखिरी बरसों में हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत से हिजरत करके बोट खेड़ा के जंगल में, जो कि करनाल शहर के करीब वाक़ है, मुंतकिल हो गए थे। यहाँ वो काजियों और मुफ्तियों और उलमा की तकालीफ से दूर हो गए और एक मुद्दत तक यहीं क़याम किया। एक रोज पानीपत के आलिम दीन मौलाना सिराजुद्दीन मक्की ने हालत कशफी में देखा कि हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दार फानी से रुखसत हो रहे हैं। उन्होंने वसीयत की है कि मुझे पानीपत में दफन किया जाए। मौलाना साहब बेदार होने के बाद अपने अजीजों को लेकर करनाल पहुंचे। मौलाना साहब और लोगों के पहुंचने से पहले ही हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपने मालिक हकीकी को प्यारे हो गए थे। अब अहले किरनाल आप रहमतुल्लाह अलैह का जसद खाकी पानीपत भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हजरत की नाश मुबारक को गुस्ल देकर कफन से आरास्ता कर दिया था, मगर पानीपत वालों का इसरार था कि मैयत को पानीपत ले जाना निहायत जरूरी है। काफी बहस के बाद करनाल वाले लोग इस बात पर रजामंद हो गए कि हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि पानीपत के बासी थे, लिहाजा उनको वहीं दफन कर देना जरूरी है। और यूं आप रहमतुल्लाह अलैह को पानीपत में दफन किया गया। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तवील उम्र पाई और तकरीबन 122 साल की उम्र में करनाल में विसाल फरमाया। बाज़ मौर्रिखीन ने आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 166 साल भी जिक्र की है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक अलाउद्दीन खिलजी के बेटों शादी खान और खिजर खान ने तामीर करवाया था, जिसकी तौसीफ बाद में शहनशाह जहांगीर के अहद में 1661 में रिज़कुल्लाह खान ने करवाई थी। मज़ार की शान शौकत का ये आलम है कि 4 सू संगे मरमर और कीमती पत्थर नस्ब हैं। जो शख्स उम्मीद लेकर आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिरी देता है वो कभी मायूस वापस नहीं लौटता। शहर पानीपत को आप रहमतुल्लाह अलैह की वजह से शोहरत हासिल हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह का आलीशान रोज़ा मुबारक लोगों के लिए मुर्जा खलाइक बना हुआ है। अकीदतमंद और मुरीद आकर हाजिरी देते हैं, मुरादों से नवाजे जाते हैं और बखुशी घरों को वापस लौटते हैं। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े उर्स मुबारक का इज्तिमा हर साल पानीपत में बड़े शान शौकत से होता है। लोग दूर दराज से आकर शमूलियत इख्तियार करते हैं और निहायत अकीदत व एहतराम से उर्स मुबारक की रौनक को दोबाला कर देते हैं।